welcome back to another video, and in this video I'm going to share my experience of fleet management interview. So before that, you guys will have your examination tomorrow, and first of all I'd like to say all the best for your examination. The examination will be conducted at venue like TMI Pune, TS Rahman Navi Mumbai and IMI Greater Noida. So all the best for your examination. And talking about the examination, I've already made 2 videos on this topic, and those video, please, I'll suggest to watch those video because I have shared my experience of online examination and also the latest pattern, because they have changed the pattern according to IMI Greater Noida's teacher. So yes, they have changed their pattern, and at my time there were 40 questions which we have to do in 30 minutes, and the cutoff was 66 out of 80. So I know the cutoff because I was at the last of the list. I was in the last of the list, and I got 66 marks, and that was the last number. So that's why I can say the cutoff is 60. The cutoff was 66, and let's see what will happen this year. And even this examination is offline. You will have to go to a different venue, and you have to conduct. You have to give the examination there only. So maybe the cutoff will be a little bit low, because offline examination is much more tough than online examination. So yeah, this is all about online examination. Must watch those 2 videos. I will put the link in the description, and even I'll put the link in the I button. Now coming to the interview part. Interview बाकी companies की तरह ही moderate होता है, and if you know the points, it will be very easy for you to tackle the interview. But अगर आपको points नहीं पता, it will be very very difficult, because यहाँ पे जो captains हैं they are very strict, and yes, they are very strict, बहुत ज़्यादा, and थोड़ी सी भी गलती होती है and rejection will be there. So आपको कुछ points है जिस पे ध्यान देना है, and that point is already mentioned in your CRA form. अगर आपने CRA form fill करने के टाइम पे ध्यान से थोड़ा सा पढ़ते तो आपको पता होगा कि वो किस चीज पे आपको जज करने वाले हैं. CRA form का जो सेकंड पेज है वो आप देखना. हम लोग के टाइम पे भी सेम CRA form, we have to fill the form, CRA form, and we will have to send that to different institute. like जिस institute में आप जा रहे हो वहां पे आपको वो fill करके भेजना है CRA form. तो CRA फॉर्म का जो सेकंड पेज है, जो कि है सिर्फ ऑफिस यूज के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए, उसमें आपको कुछ पॉइंट्स लिखा है जिस पे आपको वो जज करने वाले हैं. तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज योर जनरल अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशन. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशन, बिकॉज यू गाइस आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू इन ऑफलाइन मोड, एंड हम लोग का टाइम तो फिर भी ऑनलाइन था, बट स्टिल इन ऑनलाइन मोड ऑल्सो इट वॉज वेरी टफ to present ourselves, because मेरे को अभी भी याद है I was in like formal shirt and with a tie, बट मैंने जो नीचे लोअर जो पहना था वो शॉर्ट्स था, ठीक है, शॉर्ट्स पहना था, एंड मेरे पास शूज, मतलब मैं शूज भी नहीं पहना था. तो दे टोल्ड मी टू शो मी द कैमरा, लाइक आप नीचे करो कैमरे को, ठीक है, एंड शो मी योर पैंट. एंड जब मैं उनको दिखाया तो आई वॉज वेयरिंग अ शॉर्ट, तो उन्होंने बोला गो चेंज योर पैंट. जब मैं पैंट चेंज करके आया तो बोला दे सेड मी दैट कि जाओ फिर से आप शूज पहन के आओ, ठीक है. तो इतना ज्यादा वो फोकस करते हैं, एंड ऑनलाइन हम लोग सोच के बच जाएंगे, ये सोच के हम लोगों ने वो पहना नहीं था, शॉर्ट्स पहन के बैठते थे. ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू में हम लोगों ने ऐसे ही किया था, बट वो लोग इतना तक चेक कर सकते हैं ऑनलाइन में. तो अभी तो आप लोग ऑफलाइन में जा रहे हो, तो आप लोग को इट इज मस्ट टू वेयर फॉर्मल शर्ट विद अ टाई, द ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लू, जो भी, मतलब एक फॉर्मल तरीके से फॉर्मल अपीयरेंस में जाओ, एंड यस विद द शूज, नाइस शूज, फॉर्मल शूज. स्पोर्ट्स में मत चले जाना. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज लाइक प्रेजेंटेशन में, लाइक फर्स्ट प्रेजेंटेशन मीन्स लाइक वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो ग्रीट देम वेल, ठीक है, जो टाइम है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जैसा है आपको मिलता है टाइम स्लॉट, उसके हिसाब से उनको ग्रीट करो काफी कॉन्फिडेंस वे में, ठीक है, जैसा भी एकदम पूरा कॉन्फिडेंस दिखाओ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. उनको पता चला कि आप कॉन्फिडेंस थोड़ा भी लो है, दे आर गोइंग टू लाइक हमेशा क्वेश्चन डाल के तुमको परेशान कर देंगे. तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से वहां पे फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑन विच दे आर गोइंग टू जज यू. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट विच इज एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, ठीक है. तो इसमें भी आपका हमेशा जो एटीट्यूड होना चाहिए किसी भी इंटरव्यू में, दैट शुड बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है. एटीट्यूड एकदम बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए. कुछ होते हैं लाइक आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मैनी इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू दे भी चुका हूँ एंड मैं इंटरव्यू लेता भी हूँ कैडेट्स का. तो मैं वहां पे देखा हूँ एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत सारे बंदों को है, जो कि मतलब दे आर फुल ऑफ एटीट्यूड. जिनको सामने कौन बैठा उससे कोई मतलब नहीं है. दे आर जस्ट लाइक अ बॉस, ठीक है, वो आपका ही बॉस बनने की कोशिश करते हैं.
तो ऐसे लोगों को कैप्टन्स काफी अच्छे से संभालते हैं, क्योंकि दे हैव बीन कैप्टन फॉर मेनी इयर्स एंड दे आर नाउ सर्विंग एज ए सुपरिटेंडेंट, एंड वो आपके सामने इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनका कुछ तो ऑरा है वहां पे, ठीक है। एंड उनको पता है कि कैसे कैडेट्स को संभाला जाता है, एंड यू आर स्टिल नॉट अ कैडेट, ठीक है। बात ये कि यू आर नॉट स्टिल अ कैडेट, तो वो आपको और अच्छे से संभाल लेंगे, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट, वो विद पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड जो क्वेश्चन पूछा जाए सीधा सीधा आंसर दो, एंड हाँ सीधा सीधा ही आंसर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है जो हमेशा टेढ़ा घूम के ही आंसर देते हैं, तो उनको घुमाते भी बहुत बढ़िया से हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक दे डोंट वांट एन इंग्लिश स्पोकन पर्सन, लाइक जो कि फ्लुएंट हो, काफी फ्लुएंट हो। लाइक कैडेट्स यहाँ पे थोड़ा सा इसीलिए डर जाते हैं कि थोड़ा सा उनका लैक करता है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि हाँ मेरे को लेंगे या फिर नहीं लेंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट दे डोंट वांट अ इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, एंड यस दिस इज अ पॉइंट। एंड यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे कॉन्फिडेंस खत्म कर लेते हैं अपना जानबूझ के, ठीक है। द पॉइंट इज कि उनको लगता है कि दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में उनको लगता है कि वो काफी फास्ट नहीं बोल पाते। फ्लुएंसी इज गुड, लाइक फ्लुएंसी आप स्लो में भी फ्लुएंट होते हो। ऐसा नहीं कि इंग्लिश जब एकदम फास्ट बोला जाता है तभी उसको इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप स्लो में भी काफी स्लो जा रहे हो, नॉर्मल जा रहे हो स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में जाओ, काफी स्लो भी नहीं काफी फास्ट भी नहीं, नॉर्मल स्पीड में बोलोगे तो वो आपका फ्लुएंसी मेंटेन भी रहेगा। आप सोच लोगे कि आगे आपको क्या बोलना है, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं कि जब फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं फिर उनका जुबान जो होता है लड़खड़ाता है, एंड वो वहीं पे खत्म, कॉन्फिडेंस खत्म। इंग्लिश जहां तक आता था वहां तक बोलिए, बस आगे का याद नहीं आने वाला उसके बाद। ये मेरे साथ प्रॉब्लम होता था इन द स्टार्टिंग, तो इसलिए बेटर गो विद द नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल फ्लो में जाओगे, आगे सोच लोगे आपको क्या बोलना है, कॉन्फिडेंस रहो पूरे टाइम पे। कॉन्फिडेंस अब वो आपके अंदर है, ठीक है। आप कितना कॉन्फिडेंस अपने आप के अंदर जगा सकते हो। डरना नहीं है यार, डरना क्या है, मतलब मैं भी स्टार्टिंग बहुत डरता था, बट अब कोई डर नहीं है। अभी तो हम लोगों ने काफी इंटरव्यू फेस किए, काफी इंटरव्यू लिए, बहुत बच्चों को हम लोगों ने फ्लुएंट बनाया भी है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर घुसा के। तो दिस इज गुड पॉइंट कि आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कैसे भी भूल जाओ कि सामने कौन बैठा है, बस आपको उनके आंखों में आके डाल के बस बोल देना है कुछ भी, ठीक है। जब तक आप डर के रहोगे तब तक बहुत प्रॉब्लम होगा। इन द स्कूल टाइम ऑल्सो आई वॉज लाइक बहुत ज्यादा मैं वो था कि कैसे स्टेज पे जाना होना। अभी तो बहुत नॉर्मल सी हो गई कि कैमरे के सामने आराम से बोल लो, कहीं भी किसी के पब्लिक गैदरिंग में भी आराम से बोलो, सब कुछ इट इज वेरी नॉर्मल फॉर मी नाउ। तो वहां पे कॉन्फिडेंस लूज मत करना बस। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वही है, नॉर्मल बोल पाओ उतना काफी है, इतना नहीं कि आपको एकदम फ्लुएंट होना है, उतना भी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे अगर इतना ही फ्लुएंसी मांगते तो इवन मेरा भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मैं उस टाइम पे उतना फ्लुएंट था भी नहीं, ठीक है। बस बी कॉन्फिडेंट तो हो जाएगा, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा फोर्थ पॉइंट बॉडी लैंग्वेज से पहले आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज फ्लीट मैनेजमेंट के इंटरव्यू में काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे टाइम पे जनरल नॉलेज से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक राफेल उसी टाइम लैंड हुआ था, तो उससे पूछा, राफेल से क्वेश्चन पूछा मेरे से। कोविड-19 का टैली उसी टाइम 10 लाख हुआ था, उसी दिन पे 10 लाख हुआ था जिस दिन मेरा इंटरव्यू था। तो उसमें भी पूछा था 10 लाख से, फिर 1 मिलियन का वैल्यू पूछा, 1 मिलियन कितना होता है लाख में, ये सब चीजें पूछा काफी। अभी मैं क्वेश्चन जब लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन थे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो जनरल नॉलेज आपका काफी अच्छा होना चाहिए। फाइनेंशियल क्राइसिस किस कंट्री में कैसा चल रहा है आपको आना चाहिए, इंडिया में क्या सीन चल रहा है, आपका जो भी इंडेक्स जो भी आते हैं, मे बी इंडेक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैरीटाइम इंसिडेंट से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई पोर्ट से भी क्वेश्चन हो सकता है। जनरल नॉलेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए, यहाँ पे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सीडीएस, आर्मी चीफ, लाइक इंडियन आर्मी, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, इन सबसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं फ्लीट मैनेजमेंट के इंटरव्यू में। तो ये सब जो हाईएस्ट पोस्ट है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, जो भी हायर पोस्ट हैं सारे आर्म फोर्सेस में, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। कैबिनेट्स आपको याद होना चाहिए, कैबिनेट्स मेरे टाइम पे भी पूछा गया था। क्वेश्चन जब लास्ट में शेयर करूंगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो जनरल नॉलेज आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम जनरल नॉलेज, बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा सा खेला हो जाता है, ठीक है। बच्चे जो होते हैं मेरी तरह बैठ जाते हैं, लाइक मैं कभी अभी काफी रिलैक्स होकर बैठा हूँ। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड कैजुअल, ठीक है। अभी मैं कैजुअली बात कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि अभी क्या ही है, कैजुअल बात चल रही है, तो कैजुअली बैठ रहा हूँ। बट जब आप फॉर्मल में बैठते हो तो फॉर्मल में आपको काफी मतलब चेस्ट को अपने टाइट करके एंड आपको एकदम शोल्डर लेवल मेंटेन करके सामने एकदम अच्छे से बैठना होता है, ठीक है। तो यू शुड नो द डिफरेंस इन पोस्चर while you are in casual meeting और you are in formal meeting, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है।
तो बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा, एंड प्लीज यूज योर हैंड वाइल स्पीकिंग। ऐसा मत सोचना कि मैं अपना हैंड नहीं यूज कर सकता, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, अपना हैंड आप यूज कर सकते हो बात करने के टाइम पे, ठीक है। एंड हाँ, बॉडी लैंग्वेज में एक और चीज मैं आई साइड आपको बोलूंगा कि आई साइड नहीं, कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट, ठीक है, आई कॉन्टेक्ट विद द कैप्टन्स, ठीक है। दे आर वॉचिंग यू, ठीक है, दे आर वॉचिंग यू, आपके सामने बैठ के वो आप ही को देख रहे हो, इधर उधर वो नहीं देख रहे हो, उनके पास, उनको इधर उधर देखने से फुर्सत नहीं है, वो आपको देख रहे हैं आपके आंखों में आंखें डाल के। एंड इवन जब ऑनलाइन आप इंटरव्यू दे रहे हो तब भी मैं यही बोलता हूँ कि ऑलवेज लुक इनटू द कैमरा। लाइक अभी मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो इट इज लाइक मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं जो स्क्रीन पे देखना शुरू कर देते हैं, लाइक अभी मैं देख रहा हूँ तो वो लगता है कि हाँ वो थोड़ा सा दूर देख रहा हूँ मैं, आप अभी लग रहा होगा कि मैं आपके आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं कर रखा हूँ। तो दिस इज द डिफरेंस। एंड ऑफलाइन में तो आपको सीधा उनके आई कॉन्टेक्ट में ही मेंटेन करना है एंड वहीं पे आपको आंसर देना है, ठीक है। उनका फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा बिगड़ेगा, कभी सही होगा, बट उस पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। वो इंटरव्यू के टैक्टिक्स होते हैं तो वो आपको मैनेज करना है कैसे भी। उनके एक्सप्रेशन पे जाओगे, फेशियल एक्सप्रेशन पे, तो आप कोई भी आंसर नहीं दे पाओगे किसी भी इंटरव्यू। वो इंटरव्यू के टैक्टिक्स होते हैं, ठीक है, तो उसको इग्नोर करो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अचीवमेंट्स इज वन ऑफ योर पॉइंट। करिकुलर, को करिकुलर, कोई भी अचीवमेंट्स हो खुल के बताओ, ठीक है। सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं, बट स्टिल आई विल से कि सर्टिफिकेट उतना आपका वो नहीं करता, ठीक है। अगर किसी हायर लेवल का आप बताते हो, नेशनल स्टेट लेवल का, तभी सर्टिफिकेट मैटर करता है। बट इंटर स्कूल में आप बहुत सारे कंपटीशन करते हो जहां पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। लाइक अगर एग्जांपल लो तो मेरा ही था, इंटर स्कूल में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपको नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए जब मेन मैटर ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, वो मैटर करता है, और वो आप एक्सपीरियंस वहां पे इलेबोरेट कर पा रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है। वो आपका जो भी एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वहां पे पकड़े जाओगे। अगर एक्सपीरियंस है तो आप आराम से शेयर कर लोगे, अगर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे आपको प्रूफ दिखाने के लिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। दैट्स वन पॉइंट। तो अचीवमेंट्स होना चाहिए। मैरीटाइम फील्ड में कोई भी इंटरव्यू आपका हो रहा है, दे गिव अ गुड वेटेज टू योर अचीवमेंट्स। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अचीवमेंट्स आपका। एंड द लास्ट पॉइंट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस, योर पीसीएम परसेंटेज, और आपका जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं, लाइक जिसको हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन बोलते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं एंड वो आपको आने चाहिए। वो होता है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस। दीज आर सम पॉइंट्स जिस पे आपको जज किए जाते हैं, एंड काफी सही पॉइंट है। एंड हाँ, ये आपका पॉइंट हो गया इंटरव्यू पे जज करने के लिए। नाउ टॉकिंग द क्वेश्चन के बारे में आते हैं। तो क्वेश्चंस में देखो, लाइक मेरे टाइम पे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ से हो, किस स्टेट से, ठीक है। तो आई एम फ्रॉम यूपी एंड आर यू इनटू द स्पोर्ट्स, तो मैं बोला हाँ क्रिकेट में। तो द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके जो स्टेट का जो मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर्स का एंड स्पोर्ट्स का, वो मिनिस्ट्री कौन है, मतलब होता है कैबिनेट का, स्टेट कैबिनेट में उन लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये नॉर्मली किसी को पता नहीं होता, स्टेट कैबिनेट में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था और मेरे को नहीं पता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर मेरे से सीएम, डेप्यूटी सीएम, गवर्नर भी पूछा गया था, ठीक है। 3 चीज कैबिनेट से रिलेटेड, वो भी यूपी का ही, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे। ये हो गया कैबिनेट से क्वेश्चन। एंड स्पोर्ट्स, क्रिकेट, तो टेल मी द नेम ऑफ 5 ऑलराउंडर, टेल मी द नेम ऑफ 5 बॉलर्स राइट नाउ हु आर इन द टीम राइट नाउ, ठीक है। तो ये एकदम अभी का क्वेश्चन। एंड हाँ, आईपीएल 2020 में मेरा इंटरव्यू था, 2019 का पूछा था, हाँ 2019 में कौन जीता था, ठीक है। एंड टेस्ट चैंपियनशिप शायद चल रहा था उस टाइम पे, टेस्ट चैंपियनशिप यार खत्म हो गया था शायद। तो मेरे से पूछा था टेस्ट चैंपियनशिप का विनर कौन है, ठीक है। अभी शायद उस टाइम न्यूजीलैंड जीता था इंडिया से, तो यार मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इस टेस्ट चैंपियनशिप से क्वेश्चन था एक, ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप। एंड चैंपियंस ट्रॉफी से क्वेश्चन था, चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट टाइम जब हुआ था तो कौन जीता था। वर्ल्ड कप से क्वेश्चन था, वर्ल्ड कप 2015, ठीक है, 2019 दोनों से क्वेश्चन था, ये पूछे गए थे। एंड ऑन विच प्रिंसिपल बॉल स्पिन्स एंड ऑन विच प्रिंसिपल बॉल स्विंग, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, टेल मी समथिंग अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, ये क्वेश्चन था।
एंड कोविड का पूछा गया था, वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन कौन कौन सी वैक्सीन अभी राइट नाउ अवेलेबल इन इंडिया, एंड वैक्सीनेशन हो गया था। टैली पूछा था, नंबर ऑफ केसेस राइट नाउ इन इंडिया, कैसे क्या इंक्रीमेंट हो रहा है पर डे, बट एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है पर डे, केसेस कितने आ रहे हैं पर डे, एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ केसेस जो लाइव केसेस हैं क्या है इंडिया में, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। एंड हाँ, ये सब क्वेश्चंस थे मेरे में, एंड मेरे से कुछ ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। एंड हाँ, वो थोड़ा सा एनडीए पे ज्यादा फोकस करते हैं, लाइक एनडीए के जो कैडेट्स होते हैं और एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उन पे उनका ज्यादा फोकस होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा उनसे नॉलेज ले कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है एनडीए के प्रिपरेशन में, एनसीसी के कैंप्स में उनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। उनको उन कैडेट्स को लेने में उनका ज्यादा मतलब वो होता है कि उनको लेना चाहिए एनसीसी कैडेट्स को, एनडीए के एक्सपीरियंस को, उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मतलब इस फील्ड में क्या मतलब वहाँ एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे उनका होगा ही होगा, ठीक है। बिकॉज कैडेट्स के अंदर कुछ उनको चाहिए कुछ चीजें जो कि वो एनसीसी कैडेट्स एनडीए एक्सपीरियंस में होता है पहले से, ठीक है। तो ये चीजें ये सब आपसे पूछे जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़े से रिलीजियस भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स से पूछा गया था राम के मदर का नाम, एंड रावण के कुछ मतलब ऐसे मतलब रिलेटेड टू बुक्स, रिलीजियस बुक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस था यार फ्लीट मैनेजमेंट के इंटरव्यू का। मेरा एक्सपीरियंस, मेरे जैसे मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया था मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। एंड ये जो रिलीजियस वाला था वो मेरे कुछ फ्रेंड से पूछा गया था, तो इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया। और बाकी जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, ये सब क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए थे, बट स्टिल अगर आपको प्रिपेयर करना तो कर लो। बहुत सारा मटेरियल मेरे चैनल पे पड़ा हुआ फ्री में, वहां पे जाना, सारे बेसिक प्रिंसिपल्स के आपको डेफिनेशन के साथ मिल जाएंगे। एंड वो लिस्ट भी मिल जाएगा, जस्ट गो ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू इंटरव्यू। तो ये हम लोग का एक्सपीरियंस था फ्लीट मैनेजमेंट का। एंड यस, काफी सही इंटरव्यू होता है, काफी सही कैप्टन है इधर के। एंड थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैंने पॉइंट्स बताए उस पर आपको एक एक करके, जो पॉइंट्स आप पढ़ोगे ना, जो मैंने पॉइंट्स अभी बताए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे कैसे फोकस करना है किस पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा फ्लीट मैनेजमेंट का। एंड लाइक दैट आई विल शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ एमएससी ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो दैट्स इट। And if you found this video useful, just give it a thumbs up. And if you have any topic to suggest me, just put it in the comment section. And if you have doubt related to any part of this video, just put it in the comment section. And please subscribe the channel and press the bell icon for more videos, for more interesting videos. So thank you for watching this video.